So let us start. So what we were discussing in our last lecture, rigid pavement design, right? Yes, ma'am. Using IRC 58. Okay, and sorry, this is the code that we will use. Okay, one example I have already solved in this IRC code. Okay, Appendix 2. Now we will try to go through this problem, how we will understand, okay, how they have solved this problem, and in a similar manner we can solve other problems also. Okay, so this is one example. We will try to understand this problem. Okay, so these are the data that will be provided to you. Okay, before designing, these are the different factors or the parameters which must be required beforehand. Okay, see what is the question. A cement concrete pavement, that means rigid pavement, okay, is to be designed for the two-way national highway. It's a national highway road. Okay, Yes, so and what are the factors, what are the traffic, what is traffic? The total two-way traffic is 3000 commercial vehicle per day. Okay, 3000 commercial vehicle per day at the end of construction period. So as I said, there will be two type of the traffic. Okay, before the construction, start of the construction period, and at the end of construction period. We have to consider at the end. Okay, if before the construction period they have provided you traffic, then we have to convert that into this traffic, which is the what will be the traffic at the end of construction period. Okay. The design parameters are what? Flexural strength of the cement concrete is 45 kg per centimeter square. See, remember this. This is what? This is actually the strength of the concrete. Okay. Inner strength of the concrete, which is 45 kg per centimeter square. You have to remember this. Okay. We have to use this data. Now, effective modulus of subgrade reaction of subbase, that is nothing but what? Small k. Okay. yes, ma'am. This is your small k. Okay, this is given to you. We need this also. See, in this chart, as I said, we have to use what are the data that must be required: thickness of the pavement and the k value. See here, k values are provided you, and also the load. Okay, what is the axle load, whether it is single or your tandem axle load. Okay, so using these three values only we can calculate the stress. Okay, flexural stress. So for getting this value, we must know thickness of the pavement, K value, and the axle load. So that's why this K is given to you. Okay. Now, elastic modulus of concrete, capital E, it is given 3 into 10 to the power 5 kg per centimeter square. Positions ratio, mu is given, right, 0.15. Coefficient of thermal expansion. Basically, this is what? Alpha. Alpha is given you 10 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. Tire pressure, small p is given, okay, kg, 8 kg per centimeter square. Rate of traffic increase, that is the traffic growth rate, r value, small r is given to you. Okay, we will use all this data. You will see where we will use all this data. Okay, spacing of contraction joint, that is what? This is your Lx value. Okay, spacing of contraction joint means what? Suppose this is your slab. Yes, Okay, ma'am. there is another slab and your traffic is moving in this direction. Okay, so this is another slab like this. Okay, this is one Yes, lane, and here beside here will be another lane. Okay, I'm talking about the only one lane. Now this is one contraction joint, this is another contraction joint. So spacing between the contraction joint is given to you. Okay, that is nothing but the Lx, length of this slab is provided to you. Okay, so this is your Lx. Okay, so this distance is given to you, which is nothing but the Lx. Okay, and this distance is what? Width of the slab is your L.
Okay, we will use this value while calculating the warping stress. Okay, while calculating this warping stress, we need this Lx and Ly value. Okay, so Lx is what 4.5 and width of the slab Ly is what 3.5. So they are provided you. Okay. Now, as I said, for this chart, for using this chart, we need axle load configuration also. Or whether it is tandem axle, single axle, okay, or and what is the amount of the load. So they have provided you. See, the axle load spectrum obtained from the axle load survey is given in the following table. So this is the table. See, this is the table they have given you. Okay, we have to use this table now. Yes, ma'am. Single axle load. See, single axle load, tandem axle load. Okay, single axle means what? One axle. Okay, and tandem axle means two axles. Okay, so single axle we are conducting one axle load survey. Okay, से फॉर एग्जांपल उस रास्ते से तुम्हारा जितना भी गाड़ी जा रहा है उसका हम लोगों ने सर्वे किया. ओके, वी आर कंडक्टिंग द सर्वे. देन व्हाट वी आर सेइंग दैट देयर विल एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन में वेरी. ओके, व्हीकल टू व्हीकल वेरी करता है एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन, राइट. किसी किसी का सिंगल एक्सेल होता है, किसी किसी का टैंडम एक्सेल होता है. तो वो हमने डाटा कलेक्ट किया है कि जैसा जैसा गाड़ी जा रहा है उसका कैसा कॉन्फ़िगरेशन है और लोड कैसा है. ओके, सो दिस इज द सर्वे डाटा. Yes, ओके, ma'am. तो सिंगल एक्सेल लोड रेंज देखो, रेंज मतलब ये है कि 19 टर्न से 21 टर्न्स का जो सिंगल एक्सेल का जो लोड का वैसा टाइप का व्हीकल्स है, ठीक है, कितना सारा गया 0.6% गया. अगर 100 व्हीकल्स है, ठीक है, 100 व्हीकल्स टोटल सैंपल जिसके ऊपर हम लोग सर्वे कर रहे हैं, हम लोग तो पूरा एकदम सब गाड़ी के ऊपर तो नहीं करेंगे, हम लोग वी विल टेक सम सैंपल, राइट. से फॉर एग्जांपल इन ए स्टडी योर सैंपल साइज इज 100, तो उसका 0.6% है कितना एक्सेल लोड रेंज में आ रहा है. उसमें 19 to 21 जो एक्सेल लोड रेंज आ रहा है वो कितना सारा व्हीकल्स आ रहा है 0.6% ऑफ 100 ऐसा व्हीकल्स आ रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 100 अगर करेंगे तो 0.6 100 का 0.6% कितना होता है 6/10 इंटू 100 मतलब ये कितना होगा 6/100 0.6/100 इंटू 100 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.6 ही आएगा. ठीक है, तो अगर देखो ये 17 से 19 रेंज वाला व्हीकल्स मतलब जिसका गाड़ी का लोड, ठीक है, ऐसा है कि सिंगल एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है और उसका लोड कितना है 17 से 19 के बीच में वो लोड है, इतना टन कैरी कर रहा है वो वाला व्हीकल. ठीक है, तो वैसा टाइप का व्हीकल्स कितना बार आ रहा है 1.5 टाइम्स आ रहा है. मतलब 100 में 1.5 व्हीकल्स आर ऑफ दिस रेंज जिसका सिंगल एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, तो वैसे ही 4.8 है ये 15 to 617 का रेंज का है 4.8 ऐसे करते करते हम लोगों ने ले लिया है. ठीक है, Yes, ma'am. अब आता है टैंडम में. देखो ये 93% है तुम्हारा सिंगल एक्सेल, बाकी का 7% है टैंडम एक्सेल. ठीक है, तो टैंडम एक्सेल लोड रेंज भी यही है 34 से 38 टन्स का जो व्हीकल्स लोड कैरी कर रहा है टैंडम एक्सेल वाला वो कितना बार आ रहा है 0.3 टाइम्स आ रहा है. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट. दिस इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी कि कितना Yes, ma'am. बार ऐसा टाइप का ऐसा रेंज का व्हीकल आएगा एक सैंपल में. ठीक है, अब वो तुम्हारा अगर वो यहाँ पे हम लोगों ने बोला 100 व्हीकल्स हम पकड़े, वो तुम्हारा 1000 व्हीकल लैक्स व्हीकल्स भी हो सकता है, नंबर में वेरी, लेकिन परसेंटेज यही है. ओके, सो टोटल मिला के देखो 100% आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली दी परसेंटेज 0.6% 1.5% ऐसा दिया है. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये डाटा हमको चाहिए था. क्यों चाहिए था, ये वाला ग्राफ देखो, इस वाले ग्राफ में हमको देखो क्या क्या चाहिए था, टैंडम एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन या सिंगल एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन और लोड रेंज कितना है ये वाला चाहिए था. के तो यहाँ पे दिया है के इज 8. ठीक है, एंड थिकनेस अब हमको एज्यूम करना पड़ेगा. उस एज्यूम करके करके हमको for that particular thickness and given these two data what will be the flexural stress, that is nothing but the stress due to loading कितना आएगा एक पेवमेंट के ऊपर वो हमको निकालना है. ओके, वो हम दिखाएंगे कैसे करेंगे. सो फर्स्ट क्या था हम लोग का फर्स्ट स्टेप था कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक एस्टिमेशन. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. हमको ये सी पहले निकालना था. ठीक है, तो सी निकालो. सी के लिए क्या क्या चाहिए देखो 365 इंटू ए. ठीक है, 1 plus r to the power n minus 1 by r.
ये ए क्या था, ए गिवन है, राइट, ये है तुम्हारा प्रेजेंट ट्रैफिक, अभी फिलहाल जो ट्रैफिक है, ओके, मतलब ये आफ्टर कंस्ट्रक्शन वाला ट्रैफिक है ए, जो कि दिया गया है क्वेश्चन में। आर इज द ट्रैफिक ग्रोथ रेट, इट इज ऑल्सो गिवन, राइट। एन वी हैव टू एज्यूम, ठीक है, एज्यूम करना, आर अगर नहीं दिया रहता तो एजम्पशन कितना है, ट्रैफिक ग्रोथ रेट इज 7.5%, ओके, एंड एन इज फॉर नेशनल हाईवे कितना है वो हमको एज्यूम कर लेना है, ओके। सो लेट अस सी, देखो ट्रैफिक, प्रेजेंट ट्रैफिक ए का वैल्यू है 3000 सीवीपीडी, डिजाइन लाइफ नेशनल हाईवे का है तुम्हारा फॉर रिजिड पेवमेंट 20 इयर्स, ठीक है। आर तुम लोग को क्या दिया है, देखो आर यहाँ पे दिया है, ए इज व्हाट 3000, ठीक है। ट्रैफिक ग्रोथ रेट दिया यहाँ पे, हाँ, रेट ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज इतना है 0.075, मतलब है 7.5% है, ठीक है। आर का वैल्यू भी दिया है और नेशनल हाईवे बोला है, सो एन इज 20 इयर्स, ओके, फॉर नेशनल हाईवे, मतलब उसका डिजाइन लाइफ कितना होना चाहिए, 20 इयर्स के लिए हमको डिजाइन लाइफ करना है। लिखो यहाँ पे, कैलकुलेट करो, 365 into 3000 plus 0.075 to the power 20 minus 1 by 0.075, पुट करो। ए है तुम्हारा 3000, ठीक है, आर है 7.5%, तो 0.075, ओके। एन इज 20 इयर्स, तो कैलकुलेट कितना आएगा, निकालिए सी का वैल्यू, प्लीज कैलकुलेट एवरीवन। कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 365 into 3000 into 1.075 to the power r n is 20, ठीक है, कर रहे हो। देखो 47418626 ऐसा कुछ आएगा, ये वाला वैल्यू आ रहा है, देखो 4741626, 4741826 सी का वैल्यू इक्वल्स टू आएगा, देखो 4741826 आ रहा है। एक मिनट कर रहे हैं, ये सीवीपीडी, ओके, आ रहा है। ओके। तो इतना देखो, इतना कमर्शियल व्हीकल्स पर डे, सीवीपीडी मतलब टोटल व्हीकल्स कितना आ रहा है फॉर 20 इयर्स, उसके ऊपर वो पेवमेंट के ऊपर, ठीक है, पेवमेंट के ऊपर टोटल 20 इयर्स के लिए क्यूमुलेटिव कितना रिपीटेशन ऑफ लोड आएगा, कितना गाड़ी रिपीटेटिव वे में थ्रू आउट इट डिजाइन लाइफ आएगा, इतना बार आएगा, ठीक है। बट व्हाट आई सेड, हमको क्या करना है, हमको उसका 25% ही पकड़ना है, क्योंकि देखो ये वाला जितना भी नंबर, जितना भी व्हीकल्स आ रहा है, ठीक है, कोई कोई एज से जा सकता है, कोई कोई तुम्हारा इंटीरियर से जा सकता है, राइट, मतलब बीच से जा सकता है, एज से जा सकता है, राइट। तो हमको लेकिन जो एज से जाएगा उसका ही काउंट चाहिए, बिकॉज एज से जो जाएगा वही ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये टोटल व्हीकल जितना भी है उसमें से सब गाड़ी एज से नहीं जाएगा, पेवमेंट के एज से नहीं जाएगा, या सब गाड़ी इंटीरियर पार्ट से, सेंटर से नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ सेंटर से जाएगा, कुछ कुछ इंटीरियर से जाएगा, और कुछ कुछ तुम्हारा एज से जाएगा। तो हमको लेकिन कितना एज से जा रहा है, एकदम एज से होके कितना सारा व्हीकल जा रहा है उसका काउंट चाहिए, क्योंकि वही व्हीकल ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करेगा, ठीक है। तो इसीलिए वी हैव टू टेक 25% ऑफ दिस टोटल डिजाइन ट्रैफिक, ओके। तो इसका देखो 47418626 कमर्शियल व्हीकल का जो है उसका 25% निकालो, देखो तो 25/100 इंटू ये करके ये वाला आएगा, इज इट विजिबल, देखो ये वाला वैल्यू आएगा, देखो इसका 25% इज दिस मच। अब हमको ये काउंट करके हमको डिजाइन करते जाना है, ओके। तो ये काउंट करके हमको ये डिजाइन जाना है, ठीक है, मतलब हमको यही व्हीकल काउंट लेना है, ना कि ये वाला, क्लियर।
Is it clear? Now let us go to the next step. This is what? This is your total number of the vehicles, repetition of the Yeah. vehicles that will travel from the edge of the pavement. Okay, और हमको यही काउंट से अब फर्दर ये प्रोसेस करना है, फर्दर ये स्टेप्स करना है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? देखो इसमें से क्या है कि इतना टोटल व्हीकल्स आ रहा है सब मिलाकर, टैंडम एक्सल, सिंगल एक्सल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेंज का जो भी है सब मिलाकर इतना सारा व्हीकल्स आ रहा है, सब मिलाकर टोटल. ठीक है, अब इसमें से रेंज दिया गया है कि इसमें से जो 11854 जो भी है, इसमें से ये वाले रेंज का व्हीकल कितना परसेंटेज आ रहा है? 0.6% आ रहा है. ठीक है, ये वाले रेंज का व्हीकल कितना परसेंटेज आ रहा है? 1.5% आ रहा है, मतलब 0.6% ऑफ दिस वैल्यू. ओके, 0.6% ऑफ दिस वैल्यू इसका नंबर है. ठीक है, इस वाले रेंज का नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना है? 1.5% ऑफ दिस वैल्यू. इस वाले रेंज का नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना आ रहा है, कितना बार आ रहा है? 4.8% ऑफ दिस वैल्यू. इज इट क्लियर? तो इस वाले स्टेप में देखो, अब हमको यही से ये वाला डाटा निकाला है, ये जो डाटा निकाला है. ठीक है, दिस इज व्हाट. अब इसका जो एक्सेल लोड रेंज है 19 से 21 इज द रेंज, लेकिन हमको एक ही वैल्यू लेकर कंसीडर करना है. तो व्हाट वी विल टेक द एवरेज वैल्यू. ओके, दैट इज द मीन वैल्यू. तो ये क्या होगा? 19 और 21 का मीन क्या होता है? 19 और 21 का मीन क्या होता है? एवरेज क्या होता है 19 21 का? 19 plus 21 by 2 will give you 20, right? Yes. इसका एवरेज वैल्यू यहाँ पे लिख दो अब. ठीक है, सिंगल एक्सेल का लोड इन टर्न्स और एक्सपेक्टेड रिपीटेशन. एक्सपेक्टेड रिपीटेशन मतलब है कि ये वाला रेंज का कितना बार आएगा, कितनी बार ऐसा टाइप का व्हीकल्स आएगा. ठीक है, दैट इज द एक्सपेक्टेड रिपीटेशन. क्योंकि ये वाला क्या है? दिस इज द थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ कितना व्हीकल आ सकता है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स, टोटल व्हीकल्स, उसमें से ये वाला रेंज का कितना बार आएगा? 0.6% ऑफ दैट 11. ठीक है, तो उसका देखो इसका एवरेज क्या है? 20 है. 17 19 का एवरेज क्या है? 18 है. 15 17 का एवरेज 16. ऐसा करते करते हम लोग जाएंगे. ठीक है, अब ये देखो 0.6% ऑफ ये वाला करके देखो कितना वैल्यू आएगा? 0.6% ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज 0.6 by 100 इंटू ये वाला वैल्यू करके देखो कितना आएगा? 0.6 by 100 इंटू 11 854 657 71,127 आएगा. कैलकुलेट कर सकते तुम लोग, यू कैन चेक इट. ठीक है, तो देखो ये वाला वैल्यू आ रहा है. ओके, तो यहाँ पे लिख दिया. से फॉर एग्जांपल अब ये वाला वैल्यू करो तो कितना आना चाहिए? ये वाला 13 और 15 का रेंज का जो भी व्हीकल्स है, टर्न का, इतना टर्न का जो रेंज का व्हीकल है, दैट इज व्हाट 14 टर्न्स. ठीक, इसका एवरेज वैल्यू है 14. तो इतना टर्न का व्हीकल कितना बार आ रहा है? 10.8 टाइम्स ऑफ दिस वन, मतलब 10.8% ऑफ दिस वन. तो व्हाट इज दिस वैल्यू? 10.8% ऑफ दिस वैल्यू कितना आएगा? Yes, ma'am. 10.8% ऑफ दिस वैल्यू कितना आना चाहिए? बोलो. हाँ बोल रहे. 10.8 by 100 into 11854 657. ये आ रहा है, ये वैल्यू आएगा. देखो नहीं कर रहे मैं. 28030 2.95, तो उसको करने से क्या आ रहा है? 2.3 कर दिया है. ठीक है, अप्रोक्स. Yes ma'am. Yes ma'am. ओके, तो ऐसे ये वैल्यू निकाला है. निकाल पाओगे तब सबका? ठीक है, वैसे करके करके निकालना है. तो ये होगा सिर्फ सिंगल एक्सेल का. अब टैंडम एक्सेल का भी वैसे निकाल दो. 34 38 का एवरेज है 36, तो 0.3% ऑफ दिस वन विल गिव यू दिस वैल्यू. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये है तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिपीटेशन. ये याद रखना, ये है एक्सपेक्टेड कितना आ सकता है. एक है आ सकता है, एक है आएगा, मतलब आएगा उसके ऊपर, ये आ चुका.
ठीक है। so this actually what this is the expected repetition, okay, तो ये याद रखना है, okay। Yes, ma'am. अब ट्रायल, अब हमको क्या मिला, देखो सिंगल एक्सल टेंडम एक्सल, हमको चार्ट से क्या निकालना चाहिए था, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस या स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग हमको चार्ट से निकालना है, ओके। वी आर नॉट यूजिंग फॉर्मूला, वेस्टरगार्ड का फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चार्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जो स्ट्रेस आएगा दैट इज द स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए था, स्लैब थिकनेस चाहिए था, के का वैल्यू चाहिए था, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर वो दिया है हम लोग को, सबरेट रिएक्शन वैल्यू दिया है 8 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी हम लोगों ने निकाल दिया एक्सेल तुम्हारा सर्वे से, एक्सेल लोड सर्वे से, ठीक है। तो अब आएंगे हम, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, अच्छा ये थिकनेस हम लोगों को एज्यूम कर लेना है। अब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिजाइनिंग द पेवमेंट, राइट, स्लैब थिकनेस, डिजाइनिंग रिजिड पेवमेंट मतलब क्या है, स्लैब थिकनेस हम लोग को डिजाइन करना। तो एज आई सेड व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टू डिजाइन द पैरामीटर्स, ठीक है, मतलब एजम्पशन पहले करना है फिर चेक करना है। तो पहले हम लोग एजम्पशन करते हैं, यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ट्रायल थिकनेस लेट अस एज्यूम 32 सेंटीमीटर, इन लोगों ने यहाँ पे 32 सेंटीमीटर पकड़ लिया है ट्रायल, ठीक है, ट्रायल थिकनेस। सबग्रेड मॉड्यूलस दिया है 8 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, ये के का वैल्यू है, डिजाइन पीरियड 20 इयर्स दे दिया है, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर या इसको हम लोग बोलते हैं इनर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, खुद का स्ट्रेंथ, ठीक है, कंक्रीट का स्ट्रेंथ, खुद का स्ट्रेंथ कितना है, ताकत कितना है, दैट इज 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एंड लोड सेफ्टी फैक्टर ये भी याद रखना है, ओके। लोड सेफ्टी फैक्टर फॉर नेशनल हाईवे इज 1.2, हम लोगों ने ये भी किया है शायद यहाँ पे, लोड सेफ्टी फैक्टर सी, ठीक है, लोड सेफ्टी फैक्टर फॉर नेशनल हाईवे 1.2 एज्यूम करना है, ओके। यहाँ से हम लोगों ने ले लिया, ओके। अब क्या करेंगे, अब आएंगे ये वाला टेबल, ओके, ये ध्यान से देखना है क्या 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 यहाँ पे लगेगा। तो फर्स्ट कॉलम इज व्हाट, एक्सेल लोड, मतलब कौन सा, ये सब, ओके, ये सब जो है एक्सेल लोड इन टर्न्स, ठीक है, या केजी जिसमें देगा वो वाला। क्या करना है, उसके बाद एक्सेल लोड जो भी आएगा उसको हम लोड सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हमको और बढ़ा के दिखाना है, राइट। Yes, ma'am. 1.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लोड सेफ्टी फैक्टर इज 1.2, तो एक्सेल लोड इनटू 1.2 हमको ये करना है, ओके। ये हो गया। दूसरा कॉलम क्या है, स्ट्रेसेस फ्रॉम दी चार्ट, मतलब फॉर दिस एक्सेल लोड, ठीक है, फॉर दिस थिकनेस एंड फॉर दिस के वैल्यू व्हाट विल बी द स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू लोडिंग। तो कहाँ से आएगा, ये सब चार्ट से आएगा, ठीक है। तो थिकनेस हम लोग ने एज्यूम कर लिया है 32, के का वैल्यू दिया है, अब ये हमको देखना है, ये वाला बहुत सारा चार्ट से, देखो बहुत सारा चार्ट से, ओके। तो कौन सा चार्ट यूज करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन दिस वन, ये पहले ये वाला देखना है एकदम हेडिंग में, टैंडम एक्सेल है ना कि सिंगल एक्सेल है, ठीक है, ये देखते देखते जाना, और कितना एक्सेल लोड है तुम्हारा वो भी चेक करते करते जाना है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका, तो ये स्ट्रेस निकालना है फ्रॉम द चार्ट, ठीक है। अब स्ट्रेस रेशियो क्या है, ये है कि एक्चुअली कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ड्यू टू लोडिंग, 4 टन्स का लोड दे रहे हो उससे कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, सपोज 25.19 चार्ट से आ गया, ठीक है। Yes, ma'am. अब स्ट्रेस रेशियो निकालना है, स्ट्रेस रेशियो क्या है, एक है कि एक्सटीरियर लोडिंग की वजह से तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और एक है कि तुम्हारा खुद का कितना तुम स्ट्रेस ले सकते हो, राइट। सो स्ट्रेस रेशियो इज नथिंग बट व्हाट, जो भी स्ट्रेस आएगा डिवाइडेड बाय द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, मतलब ये देखो स्ट्रेस रेशियो, रुको अच्छा ये वाला फॉर्मूला हम दिखाते हैं, रुको। स्ट्रेस रेशियो इज व्हाट, इज नथिंग बट यहाँ से जो भी स्ट्रेस आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका इनर स्ट्रेंथ कितना है वो हमको चाहिए, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेस रेशियो, मतलब 25.19 डिवाइडेड बाय 45 विल गिव यू दिस वैल्यू, ओके। दिस इज द स्ट्रेस रेशियो। स्ट्रेस रेशियो के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितना लोड वो ले सकता है, ये वाला हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ओके। सी हियर, देखो, स्ट्रेस रेशियो इज व्हाट, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग, ये मतलब एक चार्ट से जो मिला है वैल्यू, एंड द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट जो कि उसका मॉड्यूलस ऑफ रप्चर मतलब 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो वैल्यू है ये वाला, ठीक है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है ये n का वैल्यू, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द फैटिग लाइफ, ओके। फैटिग लाइफ इज द
नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितना लोड ये ले सकता है। ओके, स्ट्रेस रेशियो के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, 3 ठो वैल्यू है, अगर स्ट्रेस रेशियो का वैल्यू लेस देन 0.45 है, एन का वैल्यू इंफिनिटी होगा। ऑब्वियसली स्ट्रेस रेशियो जितना कम, ये वैल्यू जितना कम, मतलब क्या है, ये वाला वैल्यू उतना कम और ये खुद का उसका स्ट्रेंथ ज्यादा, राइट। तुम्हारा स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये जो भी लोड बाहर से आ रहा है उससे जो स्ट्रेस डेवलप है वो तुम इजीली टैकल कर सकते हो, मतलब स्ट्रेस रेशियो बहुत कम है तुम्हारा, ठीक है। तो स्ट्रेस रेशियो बहुत कम है, मतलब क्या है कि तुम ऐसा वाला जो भी स्ट्रेस आएगा तुम्हारे ऊपर तुम बहुत बार ले सकते हो, इजीली उसको टैकल कर सकते हो, राइट। वैसे तो जैसे जैसे स्ट्रेस रेशियो बढ़ेगा, देखो ये रेंज बढ़ रहा है, तो तुम्हारा एन का वैल्यू भी एक आएगा, मतलब घटता जाएगा कि तुम वो वाला स्ट्रेस अब तुम कम लेना स्टार्ट करोगे, राइट। स्ट्रेस रेशियो बहुत ज्यादा जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये एन का वैल्यू भी कम हो जाएगा, मतलब कितना बार तुम ये स्ट्रेस ले सकते हो वो भी कम होता जाएगा। तो इसको अगर हम लोडिंग के हिसाब से करेंगे, पेवमेंट डिजाइन के हिसाब से करेंगे, मतलब कि स्ट्रेस रेशियो जैसे जैसे डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ लोड जो ले सकता है वो कम होता होता जाएगा। ओके, जितना कम स्ट्रेस रेशियो वो वैसा बहुत बार ले सकता है, मतलब रिपीटेशन ऑफ लोड इट कैन टैकल इज इंफिनिटी टाइम्स। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला से कर सकते हैं, और वी कैन यूज दिस चार्ट ऑल्सो। देखो स्ट्रेस रेशियो का करस्पॉन्डिंग अलाउएबल रिपीटेशन, एन का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो ये है स्ट्रेस रेशियो। फिर एक्सपेक्टेड रिपीटेशन वो हम लोगों ने निकाल लिया, एन का वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं तुम लोग का, सॉरी ये है फैटिग लाइफ, वो वाला कैपिटल एन यहाँ पे वो पुट करना है ना। एक्सपेक्टेड रिपीटेशन क्या है, दिस इज एक्सपेक्टेड रिपीटेशन, ये जो यहाँ से मिला है वो वाला वैल्यू यहाँ पे रहेगा। ओके, मतलब फैटिग लाइफ तुम कितना ले सकते हो, ठीक है, कितना आएगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ओके, तो सपोज तुम क्या बोलते हैं, तुम 10 तो फ्रूट खा सकते हो, ठीक है, और तुमको दिया गया है 8 तो फ्रूट, 8 फ्रूट्स तुमको दिया गया है, ठीक है। तो तुमने कितना, मतलब तुम्हारा जो भी है तुम कितना ले चुके हो, तुम्हारा कैपेसिटी से कितना ले चुके हो। ऑब्वियसली दिस बाय दिस, राइट, विल गिव यू द फैटिग लाइफ कंज्यूम्ड, ठीक है। वैसे ये इतना सारा व्हीकल्स इसका ले सकता है और इतना सारा व्हीकल्स उसके ऊपर आ सकता है। ओके, ये है इतना टोटल अलाउएबल, ये ले सकता है इतना, और ये वाला है तुम्हारा कितना आएगा उसके ऊपर। तो दोनों का रेशियो विल गिव यू द फैटिग लाइफ कंज्यूम्ड। ओके, लेकिन इसमें क्या करना है, वी हैव, हमको ऐसे कॉलम वाइज नहीं जाना है। ओके, वी हैव टू रो, पहला रो खत्म करोगे फिर नेक्स्ट रो में जाओगे। ओके, फिर दूसरा खत्म होगा फिर नेक्स्ट रो में जाओगे। ये कब तक करना है, जब तक कि ये फैटिग लाइफ कंज्यूम 0 नहीं आ जाता, ठीक है। फैटिग लाइफ कंज्यूम 0 नहीं आ जाता, क्यों, क्योंकि देखो ये फैटिग लाइफ 0 कब आएगा, ऑब्वियसली जब तुम्हारा ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंफिनिटी होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर दिस बाय दिस, 5th कॉलम बाय 6th कॉलम, कितना आएगा, ठीक है, और कितना आ सकता है, सर कितना आ सकता है, कितना आएगा, ठीक है। मतलब उसका ये सपोज 100 व्हीकल्स वो ले सकता था, ठीक है, 100 व्हीकल्स ले सकता था, लेकिन आया सिर्फ 50 व्हीकल, तो उसका फैटिग लाइफ कंज्यूम कितना होगा, 50%, मतलब 0.5, राइट। मतलब वो और 50% और ले सकता है, राइट। अब ये वाला देखो, ये इसका इंफिनिटी, मतलब वो ऐसा इंफिनिटी बार वो वैसा वाला रेंज का व्हीकल ले सकता है, उसके ऊपर इतना इंफिनिटी बार आएगा तब भी फेल नहीं होगा, ठीक है। और उसका एक्सपेक्टेड इतना आ सकता है, थ्रू आउट 20 ईयर्स उसके ऊपर इतना सारा नंबर ऑफ व्हीकल्स आएगा, लेकिन वो इंफिनिटी बार वो ले सकता है, मतलब उसके ऊपर अगर इंफिनिटी बार वो सा टाइप का व्हीकल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो ऑब्वियसली दिस बाय दिस विल गिव यू उसका फैटिग लाइफ कंज्यूम कितना हुआ, मतलब उसका वो जो 0% ही कंज्यूम हुआ है, राइट, क्योंकि वो तो इंफिनिटी टाइम्स ले सकता है और वो जितना बार भी आए उसका कुछ भी खराब नहीं होगा, राइट, उसका लाइफ खत्म नहीं होगा, पेवमेंट का लाइफ खत्म नहीं होगा। सो इसका क्या हो जाएगा, देखो फैटिग लाइफ कंज्यूम विल बी दिस बाय इंफिनिटी, और कुछ भी बाय इंफिनिटी विल गिव यू 0, राइट। तो जब 0 आ जाएगा हम स्टॉप करेंगे, देन वी विल गो फॉर द टैंडम एक्सेल, वैसे ही करते जाएंगे। जब 0 आया स्टॉप करेंगे, देन व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड अप ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो टोटल फैटिग लाइफ कितना कंज्यूम हो गया वो चेक करना है। प्लीज रिमेम्बर, टोटल फैटिग लाइफ हमेशा 100% से कम होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो 100% मतलब क्या है, ये 1 से ज्यादा है, मतलब 1.17 आ रहा है, राइट। उसका लाइफ था शायद 100 ईयर्स, लेकिन उससे ज्यादा उसको ऊपर लोड आ गया, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो वो फेल कर जाएगा, राइट। अगर उसका 100 ईयर्स था, उसमें से सिर्फ 50 ईयर्स ही उसने यूज किया, तो ऑब्वियसली उसका और 50 ईयर्स बच जाएगा, राइट। तो वो और लोड ले सकता है,
लेकिन यहाँ पे जब उसका फैटिक लाइफ पूरा कंज्यूम हो चुका, मतलब 100% रीच कर चुका, तो ये फेल कर जाएगा, राइट। तो अब हमको क्या चाहिए कि हमको देखना है कि ये वैल्यू शुड बी ऑलवेज लेसर देन 1, इट शुड नॉट इंक्रीज टू, मतलब मोर देन 1 नहीं होना चाहिए, हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, ओके। अब जाते हैं स्टेप्स पे। देखो सिंगल एक्सेल में क्या है, देखो फर्स्ट लोड क्या है सिंगल एक्सेल का, 20 है, राइट। अब क्या करेंगे हम इसको 20 इंटू 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 20 इंटू 1.2 अगर करोगे तो 24 टर्न्स आएगा। क्लियर ये वाला? फर्स्ट क्या लेना है, यहाँ से ये वाला वैल्यू लो, फिर एक्सेल लोड जो भी है उसके साथ लोड सेफ्टी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, विच इज 1.2 फॉर नेशनल हाईवे, तो आएगा 24 kg, ठीक है, 24 टन्स, ठीक है। अब नाउ यूजिंग दिस we have assumed the slab thickness as 32, ठीक है, k वैल्यू एज 8, और किसका है सिंगल एक्सेल, और लोड कितना है एक्सेल लोड का, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद द एक्सेल लोड फैक्टर, लोड सेफ्टी फैक्टर, इट इज 24, so 24 सिंगल एक्सेल 24 टन्स, h is 32, सब ग्रेड इज k is 8, उसका हमको स्ट्रेस चाहिए, कितना स्ट्रेस डेवलप होगा बिकॉज ऑफ दिस लोड, तो उसके लिए लेट अस गो टू द चार्ट, ओके। तो हम लोग चार्ट में जाएंगे। अब देखो कौन सा चार्ट फॉलो करेंगे हम लोग, बहुत सारा चार्ट है, ठीक है। अब देखो ये टेंडम एक्सेल है, ये भी टेंडम एक्सेल है, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सिंगल एक्सेल कर रहे थे, राइट। सो वी विल गो टू द सिंगल एक्सेल चार्ट्स, ऊपर ऊपर जाओ, सिंगल एक्सेल आ गया, ओके। अब देखो सिंगल एक्सेल क्या है, 20 टर्न्स है, सिंगल एक्सेल 22 टर्न्स है, सिंगल एक्सेल 24, हमको कौन सा चाहिए था, 24 टर्न्स था हम लोग का, सिंगल एक्सेल 24 टर्न्स, ओके। सो वी विल यूज दिस चार्ट, ओके। तो हम लोग अब ये वाला चार्ट यूज करेंगे, ओके। अब देखो इसमें क्या चाहिए था, थिकनेस चाहिए था हमको, ये वाला वैल्यू चाहिए, ये जो है y एक्सिस से जो आएगा वो वैल्यू चाहिए, विच इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्लैब थिकनेस चाहिए, स्लैब थिकनेस हम लोग का कितना है, 32 है, 32 सेंटीमीटर इज आवर स्लैब थिकनेस, ठीक है। k का वैल्यू कितना है, 8 है, तो ये वाला कौन सा सिंबल है, स्क्वायर वाला सिंबल, ठीक है। तो इसमें देखो पहला है तुम्हारा काइट का सिंबल है, फिर स्क्वायर का है, फिर ट्राइंगल का है, राइट। तो हमको ये सेकेंड वाला ग्राफ यूज करना है, ओके, क्योंकि k इक्वल्स टू 8 का देखो ये वाला सिंबल है स्क्वायर का, ठीक है, ये जो सिंबल है। अब देखो अब 32 के लिए क्या करेंगे हम, वर्टिकली ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऐसे ऊपर ऊपर गए हम लोग, सॉरी, ठीक है। कौन सा कर्व को टच करेगा, फ्रॉम द टॉप सेकेंड, यहाँ पे टच किया, ठीक है, एकदम यहाँ पे टच कर दिया इसका। अब इसका हम लोग ये वाला वैल्यू चाहिए, फ्लेक्सरल ये y एक्सिस का वैल्यू चाहिए, तो अब हम लोग इस तरफ जाएंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसका करस्पॉन्डिंग y वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। तो y वैल्यू देखो कितना है, कितना kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, स्ट्रेस फ्रॉम द चार्ट 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है? यस मैम। 32 एज्यूम किया था, k का वैल्यू 8 है, ठीक है, सबसे पहले, लेकिन ये चाहिए सिंगल एक्सेल 24 टर्न्स, ये वाला देखना है, टेंडम एक्सेल के लिए फिर दूसरा जाएंगे, ओके, करके उसका करस्पॉन्डिंग देखो हम लोग का आ रहा है 25, ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। यस मैम। अब नीचे जाएंगे तो पता चलेगा, देखो 24 है ना, क्या है, 25 आया था, राइट। यस मैम। देखो सी, तो 25.19 अप्रोक्सीमेटली ये लिया, तो हम लोग का आई एस्टिमेट करके हम लोगों ने 25 निकाला था, ठीक है। वैसे ये वाला निकाल आया 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 25.19 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकालना है ये समझ में आ गया, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, स्ट्रेस रेशियो, स्ट्रेस रेशियो क्या बोले थे, स्ट्रेस रेशियो इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग विच इज 25.19 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हम लोगों ने चार्ट से निकाला, एंड डिवाइडेड बाय फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विच इज योर 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि दिया गया है, देखो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज 45 kg, सो दिस 25.19 डिवाइडेड बाय 45, देखो ये वाला वैल्यू आएगा, स्ट्रेस रेशियो आ रहा है 0.56 आएगा, दिस 25.19 डिवाइडेड बाय 45 विल गिव यू 0.56, राइट। अब इसका करस्पॉन्डिंग हमको फैटिग लाइफ n का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोले थे, वी कैन यूज चार्ट, राइट।
चार्ट या फॉर्मूला, जो कि इस यहाँ पे देखो ये आइदर यूज दिस फॉर्मूला और यूज दिस चार्ट, ठीक है, फ्रॉम IRC 58। तो हम लोग का कितना आ रहा था 0.56 आ रहा था, ठीक है। तो ये n विल नॉट बी इंफिनिटी क्योंकि SR का वैल्यू 0.56 है। ये वाला इक्वेशन भी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि SR का वैल्यू 0.56 है, तो इस रेंज में नहीं आ रहा है। तो नाउ वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन, ओके, व्हेन SR इज 0.56 से ज्यादा, 0.55 से ज्यादा, हम लोग का SR कितना था 0.56 है, सो वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग n, ओके। तो तुम लोग यहाँ पे SR का 0.56 पुट करके एंटीलॉग 10 बेस करके वो करो, देखो n का वैल्यू आएगा, ओके। और सिंपली यूज दिस चार्ट, ये चार्ट भी तुम लोग यूज कर सकते हैं। देखो 0.56 के लिए देखो यहाँ पे है, फॉर 0.56 कितना है तुम्हारा एक्सपेक्टेड अलाउएबल रिपीटेशन, n का वैल्यू कितना है देखो ये है, ओके। दिस इज द फैक्टिक लाइफ, ठीक है। सो 9.41 10 to the power 4, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू देखो नीचे चला जाएगा, ओके। सी देखो ये आ रहा है, ठीक है। वो 9.41 इंटू 10 पर समथिंग था, वही ये वैल्यू है, ओके। 94.1 10 to the power 3 कैपिटल N का वैल्यू और 56.56 N का वैल्यू ये है, क्लियर। अब एक्सपेक्टेड रिपीटेशन हमको ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, दिस इज व्हाट, ये जो बोले थे इस रेंज का 0.6% ऑफ ये वाला जो निकाला था 11854, दैट इज 71127, दिस इज एक्सपेक्टेड रिपीटेशन, ओके। एक्सपेक्टेड रिपीटेशन ये है, फैक्टिक लाइफ ये है, सो फैक्टिक लाइफ कंज्यूम्ड विल बी व्हाट, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब ये टोटल इतना, इसका सपोज इसका लाइफ इतना है, उसमें से इतना लाइफ वो जी चुका, ओके। सो कितना लाइफ उसका कंज्यूम्ड हो गया, सपोज तुम्हारा एज 100 इयर्स का तुम्हारा एकदम एज है, सपोज 100 इयर्स तक तुम जी सकते हो, ठीक है। और तुम्हारा अभी एज है सपोज 20 इयर्स है अभी एज सपोज, ठीक है। तो तुम्हारा कितना लाइफ कंज्यूम हो चुका 20%, राइट, 20% लाइफ कंज्यूम्ड हो चुका। वैसे इसका ये इतना रिपीटेशन वो ले सकता है, उसमें से इतना ऑलरेडी आएगा ही उसके ऊपर एक्सपेक्टेड 20 कंज्यूम होगा और 80 बाकी रहेगा। हाँ, तो लेकिन हम लोग को चाहिए फैक्टिक लाइफ कंज्यूम कितना कंज्यूम हो चुका है, राइट। तो उसका देखो इतना टोटल रिपीटेशन वो ले सकता है, लेकिन इतना आएगा तो कितना कंज्यूम हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। दिस इज द फैक्टिक लाइफ कंज्यूम्ड, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस विल गिव यू ये वाला वैल्यू, तुम लोग चेक कर सकते हो, ओके। देखो अब ये 0.7600 नहीं आ रहा है, अगर 00 आता तो हम लोग नेक्स्ट रो में नहीं जाते, लेकिन ये एक वैल्यू आ रहा है, राइट। सो वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट रो, तो नेक्स्ट रो का भी सेम वही है, 18 इंटू 1.2 का 21 आएगा, 21.6 आएगा, ठीक है। इसका फॉर 32 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंगल एक्सल 21.6 और k 8 kg सेंटीमीटर क्यूब, उसके लिए वो जो चार्ट से फिर से ये वाला वैल्यू निकालेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो इसका एक का वैल्यू तुम लोग का, एक में एग्जांपल लिख देते हैं, हम लोग का आ रहा है कितना 21.6, ओके। लेकिन 21.6 का कोई चार्ट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटरपोलेट, ठीक है। तो देखो 21.2 20 है, 22 है, 21.2 है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 20 का एक वैल्यू लेंगे फॉर द सेम 32 के लिए, k इक्वल्स टू 8 के लिए तुम्हारा कितना आएगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेस वो निकालेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली 22 का भी वही 32 थिकनेस के लिए, k इक्वल्स टू 8 के लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेस कितना आएगा वो निकालेंगे, देन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट इंटरपोलेट, ठीक है। तुम्हारा 20 टर्न्स का कितना है वो निकल आया, 22 टर्न्स का कितना है वो भी निकल आया, तो इन दोनों के बीच का वैल्यू क्या है 21.6, तो उसका क्या होगा, सो सिंपली वी विल इंटरपोलेट। थोड़ा टफ है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ऐसा ही करना है, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली इंटरपोलेट, ओके। क्योंकि कुछ कुछ वैल्यू तुमको चार्ट में दिया ही नहीं रहेगा, मिलेगा ही नहीं तुमको, तो क्या करोगे, अच्छा नहीं करोगे, नहीं हमको करना है, लेकिन व्हाट वी विल डू, वी विल इंटरपोलेट, ओके। तो ऐसा करके ये वाला वैल्यू आएगा, फिर से स्ट्रेस रेशियो निकालो, दिस डिवाइडेड बाय 45 विल गिव यू दिस, इस करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस रेशियो का
तुम चार्ट से या वो जो चार्ट जो था कैपिटल एन का जो चार्ट था या फॉर्मूला जो था वहां से निकालो, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड रिपीटेशन कौन सा है, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिपीटेशन, ठीक है। और फिर से दिस डिवाइड बाय दिस करके देखो 0.37 आ रहा है, ओके। अब ये करते जाना कहाँ तक करना है, देखो जब थर्ड रो में जाएंगे, अब थर्ड रो में जाना पड़ेगा क्योंकि ये 0 नहीं आया, यहाँ पे 0.04, फिर से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जाके देखो ये वाला वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिड्यूस भी कर रहे हैं, लोड भी रिड्यूस हो रहा है, राइट। ऑब्वियसली कोई भी स्लैब, ठीक है, 20 के टन्स का जितना ले सकता है, 14 टन्स का वो मेनी टाइम्स ले सकता है, राइट। मतलब तुम्हारा एक लोड आया, तुम सपोज अनिमेस एक व्हीकल आया, उसका वेट था 20, तो अनिमेस टाइप का व्हीकल्स कितना बार जाएगा, उसका एक लिमिटेशन रहेगा, राइट। लेकिन बहुत कम वाला जैसे रिक्शा बोलो, जैसे साइकिल बोलो, वैसा वाला वो जितना बार भी जाए वो फेल नहीं करेगा, पेवमेंट उसको ले लेगा, राइट। तो देखो इसका टर्न क्या हो जाएगा, देखो जैसे जैसे कम होता जा रहा है, फैक्टिव लाइफ कंज्यूम भी कम होता जा रहा है, राइट। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि इस वाले लोड का अगर वैसा टाइप का व्हीकल्स आएगा तो वो इन्फिनिटी टाइम्स वो ले सकता है, देखो इन्फिनिटी टाइम्स वो लोड ले सकता है, मतलब उसका एज घटेगा नहीं, इस टाइम उसका एज घटेगा ही नहीं, राइट। तो ये फैक्टिव लाइफ कंज्यूम 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, लोड कम होता जा रहा है तुम्हारा, ये वाला देखो फैक्टिव लाइफ भी बढ़ता जाए, मतलब वो मेनी टाइम्स वैसा वाला लोड ले सकता है। ये वाला सपोज कम टाइम के लिए लेगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन कम है, ये थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा ज्यादा है उससे। अब ये देखो एकदम छोटा वाला लोड है, कम वाला लोड है, तो वो इन्फिनिटी बार्स वो ले सकता है, राइट। ये इन्फिनिटी तो ऑब्वियसली दिस डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल गिव यू 0, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं हमको, नेक्स्ट स्टेप में जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में वो इन्फिनिटी आएगा, मतलब 14 वाला जो टर्न्स का लोड वो इन्फिनिटी टाइम्स ले रहा है, तो ऑब्वियसली 12 वाला लोड तो और ज्यादा टाइम्स ले लेगा, राइट। इन्फिनिटी तो ऑब्वियसली दिस विल गिव यू 0 ओनली, तो कोई फायदा नहीं है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नाउ वी विल गो टू द टैंडम एक्सल। टैंडम एक्सल का भी सेम है, सिर्फ हमको क्या चाहिए, अब चार्ट में ये टैंडम एक्सल देखना है, ठीक है। ये जो टैंडम एक्सल लोड है वो देखकर करना है, ओके। सेम प्रोसेस है, करते करते ये भी जाएंगे, फर्स्ट रो देखेंगे 0.06 से, फिर सेकेंड रो में जाएंगे 0.0, अब स्टॉप कर देंगे, फिर टोटल ऐड कर देंगे, एंड दिस टोटल शुड नॉट बी मोर देन 1। अगर ये मोर देन 1 है तो ये 32 सेंटीमीटर जो भी है वो ले नहीं सकेगा, मतलब वो फेल कर जाएगा स्लैब थिकनेस, ठीक है। अब दूसरा में देखो 33 कर दिया, सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट थिकनेस, थोड़ा बढ़ा दिया, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, पहले में 33 था, 32 था, अभी 33। सेम प्रोसेस में करते जाओ, देखो कर किया, रो 33 आया 0.33, फिर से जाओ 0.414 आया, फिर से जाओ 0 आया, फिर से देखो ये 16 जो बोले थे हम लोग, देखो इसका भी 0 ही है, ऑब्वियसली इससे जो कम आएगा वो भी इन्फिनिटी बार से ले सकेगा, राइट। मतलब बहुत बार ले पाएगा, मतलब उसके ऊपर इजीली चढ़ जाएगा, राइट। सो ये वाला भी टैंडम एक्सल भी वैसा ही है, ये इसमें देखो फर्स्ट रो में 0 आ गया, सो नो नीड टू गो फॉर द नेक्स्ट रो। अब सबको ऐड कर दो, देखो 0.47 ऑफ, तो ये क्या है, दिस इज सेफ, मतलब अगर थिकनेस हम ये वाला लेकर करेंगे देन आवर डिजाइन विल बी सेफ। ये फर्स्ट चेक हो गया स्लैब थिकनेस का, ठीक है। नाउ ये तो क्या किया था, दिस इज ओनली वी आर चेकिंग फॉर द स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग की बेसिस कर रहे थे। अब हमको टेम्परेचर स्ट्रेस भी होता है, राइट, तुम्हारा वार्पिंग स्ट्रेस जो बोले थे हम लोग, ठीक है। टेम्परेचर स्ट्रेस भी चेक करना पड़ता है, तो टेम्परेचर स्ट्रेस के लिए क्या है, वार्पिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला ये था, हम लोगों ने किया था, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला जो बोले थे, CXE अल्फा T/2 या CYE अल्फा T/2, ठीक है। E का वैल्यू दिया है, अल्फा वैल्यू दिया है, ठीक है। और ये जो C है, CX या CY, इट डिपेंड्स अपॉन योर दिस फैक्टर LX/L या LY/L, ठीक है। LX हम बोले थे कितना है, तुम्हारा LX से कितना, स्मॉल l दिया है, कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। LX दिया है कितना 4.5, LY दिया था 3.5, ठीक है। तो स्मॉल l का वैल्यू है 103.5। ये कैसे आया, इसका ये जो फॉर्मूला देखो, स्मॉल l रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फॉर्मूला ये है, दिस वन, ओके। EH⁻³ h हमको एज्यूम किया 33, 1 माइनस म्यू दिया है 0.15, k दिया है 8, ठीक है। पुट कर दो, वी विल गेट l इक्वल्स टू ये 103.5, देखो 3 into 10⁵ इज द e वैल्यू, h है 33, म्यू है तुम्हारा 0.15, k का वैल्यू 8 लिया था, ठीक है। पुट करके 103.5 स्मॉल l का वैल्यू, lx था 4.5 मीटर एंड दिस इज इन सेंटीमीटर, तो उसको कन्वर्ट कर देना है, आइदर सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या इसको मीटर में कन्वर्ट करो, यूनिट मस्ट बी सेम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय
इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, दिस इज इन सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो तो कितना आएगा 1.03, ठीक है, और करने से क्या आ जाएगा 4.4 आ जाएगा, ठीक है। सो 4.4 LX by L 4.4 का C का वैल्यू है कितना 0.55, इसके लिए ये चार्ट से आया है, देखो CXCY चार्ट किधर है, देखो LX by L या LY by L, ठीक है, दोनों में से जो ज्यादा होगा वही वैल्यू लेकर हमको C का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो LX by L देखो L इज कॉमन है, तो L है 4.5, ये है 3.5, ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू ज्यादा रहेगा, सो 4.5 by L करके जो भी वैल्यू आएगा 4.4 आ रहा था हम लोग का, ठीक, तो 4.4 इट इज बिटवीन 4 to 5 के बीच में ये वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो उसका करस्पॉन्डिंग C का वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगा, तो इंटरपोलेट करके C का वैल्यू निकाल लेना है, ओके। करके ये वाला C का वैल्यू देखो कितना आएगा, इन दोनों के बीच में आना चाहिए, राइट। तो आके देखो C 0.55 आ रहा है, ओके, ठीक है। तो वाले में पुट कर दो, C का वैल्यू आ गया, E का गिवन है, अल्फा गिवन है, ठीक है। टी फॉर तुम्हारा कर्नाटक रीजन के लिए टेम्परेचर डिफरेंशियल है 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। ये जो टॉप और बॉटम के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके। ये वाला भी हम लोग को मिल जाएगा ग्राफ इसमें, ओके। तो ये पुट कर दो, यू विल गेट वर्किंग स्ट्रेस एज 17.3 kg, ये है स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। एंड स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग कितना आ रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस देखो कितना आ रहा है ड्यू टू लोडिंग, मैक्सिमम कितना आ रहा है इसमें से, दिस इज व्हाट, ये चार्ट से जो भी मिला दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग। तो सबसे ज्यादा कौन सा है 24.1 है, तो यही पकड़ेंगे। सो दिस प्लस दिस इज द टोटल स्ट्रेसेस डेवलप इन द पेवमेंट, ठीक है। एंड 45 इज व्हाट, 45 इज द स्ट्रेस ये ले सकता है, टोटल स्ट्रेस जो ले सकता है, इसका इनर स्ट्रेंथ। और एक्सटर्नल कितना स्ट्रेस आ रहा है देखो, ड्यू टू लोडिंग है 24.1 एंड ड्यू टू टेम्परेचर स्ट्रेस है 17.3, ऐड कर दो 41.4। ये सेफ है ना, सेफ नहीं है बोलो अब, ये है सेफ है क्योंकि ये तुम्हारा एक्सटर्नल लोडिंग बोलो या टेम्परेचर की वजह से क्या स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द उसका इंटीरियर जो स्ट्रेस है, ओके। सो ऑब्वियसली इफ दिस इज लेस देन दिस, मतलब तुम्हारा ये स्ट्रेंथ है और तुम्हारा बाहर से क्या स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ये है, बाहर की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ये, तो इनर स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऑब्वियसली योर पेवमेंट इज सेफ, मतलब थिकनेस जो भी हम लोगों ने एज्यूम किया है दैट इज सेफ, ओके। अब वैसे ही तुम्हारा कॉर्नर स्ट्रेस का भी निकालो, यही फॉर्मूला तुम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, राइट, तुम लोग का उसमें, तो यही फॉर्मूला में कॉर्नर स्ट्रेस देखकर भी उसका भी चेक करना है। कॉर्नर स्ट्रेस हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखो 15.52, अगेन दिस इज लेसर देन 45, सो ये भी सेफ है, ओके। सो आवर एजम्पशन दैट इज 33 सेंटीमीटर इज सेफ। तो यही से हम लोगों ने ऐसे ही हमको डिजाइन करना है, ओके। थोड़ा जल्दी में बता दिए, लेकिन प्लीज प्रैक्टिस करना है तुम लोग को, ओके। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना हमको। यस मैम। ओके, ठीक है, फिर आज इतना ही करेंगे, आज लेट हो गए थोड़ा, ओके। ठीक है, ओके देन, थैंक यू मैम।